رسول پہ جلوہ بار علماء ذوی احترام محفل رسول میں حاضر باش سنی مسلمانوں السلام علیکم۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والتقویم والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پر طبع دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اور کسی نے کہا کہ بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا ہے، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ اور خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم، خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا، جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا۔ میں چاہتا ہوں کہ منقبت کے 2-3 شعر سناؤں آپ کو۔ ویسے ابھی سب پڑھے، ان کی آواز اچھی ہے، ہم ویسے تو ہم نہیں پڑھ پائیں گے لیکن پڑھ دیتے ہیں۔ آپ کا مرتبہ جان خیر الورا، تاجدار ولی یا علی یا علی۔ آپ کا مرتبہ جان خیر الورا، تاجدار ولی یا علی یا علی۔ اس میں کیا شک ہے مشکل کشا آپ ہیں، ہم غریبوں کے حاجت روا آپ ہیں۔ جب کہیں کر دیا تذکرہ آپ کا، ہر مصیبت ٹلی یا علی یا علی۔ آپ نے جب اٹھا دی نگاہ کرم تو باب خیبر نے خود بڑھ کے چوما قدم، کفر لرزا ہوا منہ کے بل گر پڑا
مچ گئی کھلبلی یا علی یا علی، آپ کا مرتبہ جان خیر الورا۔ دروشی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ میں نے جو آیت تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو مومنوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اللہ ان کی محبت مومنوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں کہ اس سے حضرت علی مراد ہے، یہ حضرت علی کے بارے میں کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو مومنوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ حدیث میں آیا، نبی نے فرمایا لا يحب علی منافق ولا یبغضہ مومن، مومن جو ہے علی سے بغض نہیں رکھے گا اور منافق علی سے محبت نہیں کرے گا۔ اب اس حدیث کو اگر غور سے تھوڑا سا گہرائی میں جا کے دیکھیں تب حدیث کا مفہوم یہ نکلے گا، جو علی سے محبت کرے وہی مومن ہے اور جو دشمنی کر لے وہی منافق ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ تب معنی یہ نکلے گا اس حدیث کا، یہ علی سے محبت کرنے والا مومن ہے اور جو بغض و عداوت رکھے وہی منافق ہے۔ ایک بات آپ جان لو، جماعتیں بہت ساری ہو گئی ہیں حضرت علی کے تعلق سے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہو گئے جو خالی علی سے محبت کرتے ہیں، باقی سب کو گالی دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا وہ بھی گمراہ ہیں، صحیح راستے پہ نہیں ہیں، صرف علی کو مانتے ہیں، باقی کسی کو نہیں مانتے۔ باقی صحابہ کو گالی دیتے ہیں، وہ سب گمراہ ہیں، صحیح راستے پہ نہیں۔ نبی فرماتے ہیں اصحابی کا نجوم فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُنِي اِهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحیح راستے پہ وہی ہے جو ابو بکر سے بھی محبت کرے اور علی سے بھی محبت کرے، عمر سے بھی محبت کرے اور علی سے بھی محبت کرے۔ ایک جماعت وہ ہے جو سب کو مانتی ہے مگر علی کو گالی دیتی ہے، علی کو نہیں مانتے۔ یاد رکھیے گا وہ بھی صحیح راستے پہ نہیں ہے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا جو مومن ہوگا وہ علی سے دشمنی رکھے گا ہی نہیں۔ ذرا دیکھیے یہ حدیث پاک ہے۔ اب کچھ لوگ علی کو ماننے میں اتنا بڑھ گئے کہ کہنے والے نے کہا لوگ بے وجہ نصیری کو برا کہتے ہیں، کچھ تو دیکھا ہے علی میں جو خدا کہتے ہیں، معاذ اللہ علی کو خدا کہہ دیا، یہ بھی غلط ہے۔ سمجھ گیا؟ پھر صحیح کیا ہے؟ صحیح وہی ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے جو سبق دیا وہ یہ کہ مصطفیٰ کو بھی مانو، صحابہ کو بھی مانو، ابو بکر کو بھی مانو، عمر کو بھی مانو، علی کو بھی مانو، اولیاء کرام کو بھی مانو، ائمہ مجتہدین کو بھی مانو، سب کے ماننے کا درس دیا ہے اور یہی راستہ صحیح ہے، یہی بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا دیکھیے، یہ کچھ بھی کہیں کہ یہ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، لیکن یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہم علی سے کتنی محبت کرتے ہیں، علی کو کتنا مانتے ہیں، لیکن ماننے کا ایک دائرہ ہے، لمٹ ہے، اصول ہے، ضابطہ ہے، ایک حد ہے، شریعت ہے، قانون ہے، اس حد میں رہ کے مانتے ہیں۔ ذرا دیکھیے گا، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو بار بار یہ پڑھتے ہیں کہ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ سنو، جوان بہت ہوں گے مگر علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے، تلواریں بہت ہوں گی مگر علی
तलवार की तरह कोई तलवार नहीं है। सुभान अल्लाह। ये हम पढ़ते हैं तो हमारे दिल में अली की अकीदत है, हमारे दिल में अली की मोहब्बत है, याद रखना। लेकिन हम सबसे मोहब्बत करते हैं, सिर्फ अली से नहीं, उस्मान गनी से भी करते हैं, उमर फारूक से भी करते हैं, तमाम सहाबा से करते हैं। जरा देखो, और हक रास्ता यही है, सच रास्ता यही है। अली का मकाम क्या है, हजरत अली का मर्तबा क्या है, इनकी शान क्या है, आइए अब देखते हुए चले जाइए। एक बार की तारीख है, हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं और उमर फारूक आज़म हैं और हजरत अली हैं। तीनों सहाबा साथ साथ चल रहे हैं। एक तरफ हजरत अबू बकर और बीच में हजरत अली, एक तरफ हजरत उमर, दोनों किनारे दोनों सहाबा हैं। एक तरफ हजरत अबू बकर है, एक किनारे पे हजरत उमर है और बीच में हजरत अली है। अब आप ये जान लो, हजरत उमर का कद लंबा था, कद लंबा था, हजरत अबू बकर का भी लंबा था और हजरत अली का कद पस्त था, छोटा कद था हजरत अली का। जानते हैं, सुना आपने, हजरत अली का कद छोटा था, हजरत उमर का लंबा, एक किनारे उमर और दूसरे किनारे हजरत अबू बकर, दोनों लंबे, बीच में अली, इनका कद छोटा। तो इन्होंने मजाक करना शुरू किया। याद रखिएगा, एक मजाक सूझा जिसको जो है आप अपनी जबान में मजाक कहते हो, मजाक दिमाग में आई कि चलो मजाक किया जाए। तो हजरत उमर ने कहा, ए अली, हम दोनों के बीच में तुम ऐसे लग रहे हो जैसे लना का नून छोटा सा लगता है, जैसे लना का नून। आप यूं समझिए, लाम के माने अरबी में लिए होता है, लाम के माने अरबी में क्या होता है, और भी बहुत सारे माना है। पहले आप मेन पॉइंट को समझाऊंगा आपको। लना कैसे लिखा जाएगा, इतना तो पढ़ा लिखा होगा आ गया का आदमी। उर्दू में लना जब लिखेंगे अपने अरबी में तो ऐसे तो लिखा जाएगा लना, ऐसे खींच दिया जाएगा, दोनों तरफ खींचा रहेगा। उधर वाला लाम होगा, इधर वाला नून अलिफ जबर ना, ठीक है ना। और नून ये जो नीचे रहेगा छोटा वही नून है, और साइड वाला अलिफ होगा और इधर साइड वाला लाम होगा। यूं खींचा जाएगा, ऐसे करके ऐसे खींच दिया जाएगा, यहाँ नुक्ता रख दिया जाएगा, हो गया लना। तो इधर लंबा और इधर लंबा, बीच में नून छोटा सा। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, बीच में नून छोटा सा, इस तरीके से नून बीच में छोटा सा। तो हजरत अबू बकर का कद लंबा, हजरत उमर का कद लंबा, दोनों साइड में, और बीच में हजरत अली, बीच में हजरत अली। उमर बोले, ए अली, तुम हम दोनों के बीच में ऐसे लग रहे हो जैसे लना का नून, दोनों साइड में लंबा और बीच में छोटा सा, लना का नून लग रहे हो। मजाक किया, यानी खुश मिजाजी फरमाई हजरत अली। सुभान अल्लाह, मदीनतुल इल्म है। अब समझ लीजिए, लाम माने लिए और ना माने हमारा, हमारी, जो भी आप ले लीजिए, हमारा या हमारी। लना माने हमारे लिए, लाम माने लिए और ना माने हमारा, हमारी, तो हमारे लिए हो गया। अब जरा देखिए, हमारे लिए हो गया और नून हटा दीजिए बीच से, तो ला और अली बन करके ला बन जाएगा, ला बन जाएगा। बीच से नून हटाओ तो क्या बनेगा, ला बनेगा ना। देखो, तकरीर करके चला जाना कमाल नहीं है, दिमाग में उतारना जरूरी है, ठीक है ना। लना लिखा हुआ है, नून अली जबर ना, बीच से नून निकाल लो, बचा लाम और अलिफ। तो लाम और अलिफ मिला दो तो क्या बन गया, ला, यही तो बन गया ना। और ला माने अरबी में क्या हो जाएगा, नहीं। ला माने अरबी में नहीं, कुछ नहीं, नहीं। तो ला माने लिए, ना माने हमारे लिए। तो वो उमर बोले, ए अली, हमारे बीच में ऐसे चल रहे हो जैसे लना का छोटा सा नून। हजरत अली बाबे मदीनतुल इल्म थे, मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले, ए उमर, मगर अगर वही छोटा नून अगर बीच से निकाल दिया जाए तब तुम दोनों के माने कुछ नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले, मान लिया लना का नून, लेकिन नून अगर निकाल लो तो बन जाएगा ला, ला माने नहीं, न तुम न ये। सुभान अल्लाह। आप अंदाजा फरमाओ, ये मजाक कितना खूबसूरत खुश मिजाजी फरमाई। आज हम लोग भी मजाक करते हैं। हमारा मजाक कैसे होता है, शैतानों सुन के शर्मा जाए,
आए उटांग पटांग मजाक, ये देखिए मजाक, ये ऐसा मजाक है कि इल्म भी हो गया और तबीयत भी खुश हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह समझ अता फरमाए। और इस तरीके से मेरे आका ने भी फरमाया, कुरान फरमाता है, जरा कुछ जानकारी की बातें लेंगे, आपको जल्दी तो नहीं है। हाँ, जब मूसा अलैहिस्सलाम एक ठो आदमी को मार दिया गया बॉर्डर पे और ले जा करके डाल दिया गया, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में पता ही नहीं था किसने मारा। लोग आए, किसने मारा? मूसा अलैहिस्सलाम के पास। तो इन्होंने अल्लाह से कहा, है मेरे मौला ये जाहिर फरमा दे किसने मारा। तो इन्होंने दुआ किया तो अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा इनसे कहो अंतज़बहु बकरा, तुम लोग एक बकरा ज़बह करो। बकरा मीन्स वो होता है जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहता, आप समझ जाइए। एक बकरा ज़बह करो और उसके दुम को लगा दो इसको, बस अभी ये जिंदा होके बता देगा कि किसने मारा, किसने मारा। जरा देखिए, आप लगा दो अभी जिंदा होकर के बता देगा। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, आप बताइए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब हाथ नीचे किया तो इनसे कहा कि अल्लाह ने फरमाया है कि एक बकरा ज़बह करो, उसका कोई वजू या दुम काट के लगा दो, अभी जिंदा हो जाएगा। तब वो बोले, आप एक नबी हो कि हमसे मजाक कर रहे हो? अतत्तखिज़ुनी हुज़ुआ, आप हमसे मजाक कर रहे हो एक नबी हो करके? तब मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, औज़ु बिल्लाहि मिन अन अकूना मिनल जाहिलीन। कुरान फरमाता है, देखिए पहला पारा, मैं पनाह मांगता हूं अल्लाह की इससे कि मैं मजाक करूं, मैं पनाह मांगता हूं इससे कि मैं जाहिलों में से हूं। मतलब मजाक करना जाहिलों का काम है, ये कुरान बता रहा है। इस हिसाब से ये जाहिलों का काम है, ये तो कुरान ने बताया। अब आइए हम आपको बताते हैं, ये है सुरूरुल कुलूब इला दयारिल महबूब, उसमें लिखा है हजरत नबी पैगंबर की फूफी, हजरत फूफी बूढ़ी है, हजरत सफिया है, बाल सफेद हो गए, नबी आए और मुस्कुराए उनको देखकर, बोले ए फूफी जान, कोई बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी। इतना सुनना था कि आंखों से आंसुओं के सैलाब, रोने लगी, बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी। अरे आप पर ईमान लाई हूँ जन्नत के लिए, नमाज पढ़ा है जन्नत के लिए, रोजा रखा है जन्नत के लिए, मेहनत किया है जन्नत के लिए, अब कोई बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी। तब फिर मेरी मेहनत बेकार गई, रोने लगी। नबी मुस्कुराए और नबी ने इरशाद फरमाया, नहीं ये मतलब नहीं है मेरा, कोई बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी। इसका मतलब ये है, कुरान फरमाता है, इन्ना अंशाना हुन्ना इंशा, हम जितनी बूढ़ी बूढ़े लोग होंगे सबको जवान कर देंगे और सब जवान होके जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह, जन्नत में कोई बूढ़ा बूढ़ी नहीं रहेगा, ये माना था। तो ये भी एक मजाक है, याद रखिएगा। वो मजाक जो शरीयत के खिलाफ हो, उल्टा पलटा हो, झूठ हो, गलत हो, वो जाहिलों का काम है। इल्मी मजाक कर लेना ये हजरत अली का तरीका है, मुस्तफा की सुन्नत है, याद रखिएगा। दोनों में फर्क समझ में आया? तो अब हजरत उमर ने कहा कि ऐसा, इन्होंने जवाब दिया, अगर मैं हट जाऊं तो तुम में का कोई बचेगा ही नहीं। सुभान अल्लाह, इल्म बड़ा जबरदस्त था इनका ना, बहुत जबरदस्त इल्म के मालिक थे। यही हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जरा तारीख देखते हुए चले जाइए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत फातिमा ने एक बार चादर दिया, ये जाओ बेच करके कुछ पैसे ले आओ ताकि खाने पीने का सामान हो जाए। और ये जो है मुहक्किकीन ने अपनी अपनी किताबों में, इज़ालतुल खिफा में और दीगर किताबों के अंदर मौजूद है, ये गए वो चादर बेचने के लिए। और जब मार्केट में पहुंचे तो कितने में चादर को बेचा? 6 दिरहम में। कितने में बेचा? चादर को कितने में बेचा? 6 दिरहम में। और बेच करके जैसे पैसा हाथ में लिए लेके चले, तब तक एक साइल आ गया, बोले गरीब हूँ, भूखा हूँ,
अल्लाह और रसूल के सदक़े में हमें कुछ दे दिया जाए। हज़रत अली ने जितना पैसा था सब उठा करके उसको दे दिया, 6 के 6 दिरहम उसको दे दिया, 1 रुपया नहीं बचा। अब वापस खाली हाथ घर आ रहे थे, चादर भी गई और उसके बाद वापस आ रहे थे। ये था कि कुछ सामान ले आओ खाने के लिए। मैंने कल बताया था अल्लाह की राह में जब तू तिजारत करेगा तो घटने वाला नहीं है। वो आ रहे थे, रास्ते में एक आदमी ऊँट लेकर के मिला, ए अली ये ऊँट खरीद लो, ए अली ये ऊँट खरीद लो, बेच रहा हूं। तो हजरत अली ने कहा खरीद तो लेता मगर पैसा ही नहीं है मेरे पास। तो उसने कहा पैसा नहीं है आपके पास? बोले हाँ। तो उसने कहा देख लो ऊँटनी गड़बड़ नहीं है, बड़ी अच्छी है, ले लो। तो हजरत अली ने कहा देख रहा हूँ ऊँटनी अच्छी है कोई ऐब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर पैसा तो होना चाहिए। पैसा नहीं है मेरे पास, मैं कैसे खरीदूं? मैं नहीं खरीद सकता। तो वो आदमी बोला चलो खरीद लो, बाद में दे देना, बाद में दे देना। हजरत अली ने कहा बाद में कहाँ से पैसा लेकर के आएंगे, इतना रुपया रहने दो, हम नहीं खरीदेंगे। उसने कहा हजरत अली जब आ गए हो तो अब लेके जाओ, चलो 1 महीना 2 महीना 4 महीना जब दिल कहेगा तब दे देना, मगर खरीद लो। हजरत अली भी सोच में पड़ गए, ये कौन है पीछे पड़ गया, ले लो, पैसा नहीं है तो बिना पैसा वक्त ले लो, बाद में दे देना। तो कहा मुझे कोई एतराज नहीं है, जब पैसा आ जाएगा तब दे देना, मगर ले लो, खरीद लो, कहाँ लेकर के जाओ? हजरत अली ने कहा ठीक है, जब तुम इतना जिद कर रहे हो तो मैं ले लेता हूँ। कितने में लोगे, कितने में दोगे? तो बोले 100 दिरहम में देंगे। हजरत अली ने कहा ठीक है 100 दिरहम में ले लेते हैं। 100 दिरहम में खरीद लिए। वो आदमी चला गया, ऊँटनी के महाल को पकड़ करके, लगाम को पकड़ करके घर की तरफ लेके आ रहे थे, तब तक एक दूसरा आदमी आ गया। उसने कहा ए अली इस ऊँटनी को बेचोगे? हजरत अली ने कहा बेचेंगे। कहा कितने में बेचोगे? अली ने कहा 100 दिरहम में खरीदा है, ये तो चाहिए, बाकी जो तू कहे। उसने कहा 100 दिरहम ये ले लो जो तुम्हारा जमा जिसने खरीदा है, और 60 दिरहम ये लो, 160 दिरहम, ये 60 दिरहम तुम्हारा नफा है, 160 दिरहम में ऊँटनी हमें दे दो। हजरत अली ने 160 दिरहम लिया, ऊँटनी उसको दे दिया, वो लेके चला गया। ये पैसा ले करके थोड़ा आगे बढ़े तब तक पहले वाला आदमी मिल गया। ए अली ऊँटनी बिक गई? हाँ बिक गई। तो बोले तब हमारा पैसा दो। जब ऊँटनी बिक गई हमारा पैसा दो। हजरत अली ने 100 दिरहम निकाल के दे दिया और 60 को जेब में रखा। घर पलट करके घर वापस आए, सामान खरीदा खाने पीने का, और आकर के बताने लगे हजरत फातिमा से मेरे नबी की तब तक आ गए, मेरे नबी की सुन रहे हैं। जब बताया मेरे नबी मुस्कुराए, ए अली तुमको पता है ये कौन था जो ऊँटनी दे के गया और कौन था जो खरीद के गया? बोले अल्लाह के रसूल नहीं मालूम। बोले ऊँटनी बेचने वाले जिब्रील थे और खरीदने वाले मीकाईल थे, और वो ऊँटनी दुनिया की नहीं जन्नत की थी। वही वो ऊँटनी है जिस पर मेरी बेटी मैदाने महशर में सवार होकर के पुल से रात को पार करेगी। वही वो ऊँटनी लेके आए। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह समझ अता फरमाए। ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और ये हजरत अली की शान है। इज़ालतुल खिफ़ा ही में लिखा है, एक बार मेरे आका ने, सहाबा बैठे हुए हैं बारगाह मुस्तफ़ा में, मेरे नबी ने हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी को बुलाया, इधर वो आए, करीब आए तो बोले चले जाओ अली के घर पे, अली को बुला लाओ। ये गए, हजरत अली के घर पे गए। इज़ालतुल खिफ़ा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। और जल्दी ये देखिए 12 तकरीर, 20 तकरीर, 72 तकरीर, इन सब में ये सब नहीं मिलेगा जल्दी। हाँ ये सब नहीं मिलेगा, हाई किताबें देखनी पड़ेगी, बड़े मुहक्किकों की। हवाला दे रहे इज़ालतुल खिफ़ा। हजरत अली को जाओ बुला करके ले आओ। गए हजरत अली को बुलाने के लिए, जब दरवाज़ा खटखटाया अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो पलट के आ गए। अल्लाह के रसूल शायद अली घर में नहीं है, घर में नहीं है, मैंने खटखटाया लेकिन जवाब नहीं मिला। मेरे नबी मुस्कुराए, बोले फिर से जाओ, अली घर के अंदर ही है।
हैं, जाओ बुला के लाओ। जब गए दरवाजा खटखटाया तो उधर से जवाब मिला, कहा आपको सरकार बुला रहे हैं। एक रोशन था, खिड़की थी बगल में, उससे इन्होंने झांका जब अंदर तो क्या देख रहे हैं, एक चक्की अंदर चल रही है और चक्की चलाने वाला कोई है ही नहीं है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अपने आप चल रही है। वो आज की चक्की नहीं है कि डीजल डाल दो चालू कर दो, वो हाथ से चलाना पड़ता था। चक्की घूम रही है मगर घुमाने वाला नहीं है। पलट करके आ गए, देख करके हजरत अली भी आए, नबी बात करने लगे। ये बड़े गौर से अबू ज़र ग़िफ़ारी मुस्तफ़ा का चेहरा देख रहे हैं। मेरे नबी ने देखा, नबी ने टाल लिया कि ये कुछ पूछना चाहते हैं। नबी ने पूछा, ए अली ये बताओ क्या देख रहे हो इतने गौर से? बोले ए अल्लाह के रसूल, एक बड़ी हैरत अंगेज बात देख करके आया हूँ जो समझ में नहीं आ रही है। नबी ने कहा क्या? कहा अली के घर में मैंने देखा चक्की चल रही है मगर चलाने वाला कोई नहीं दिख रहा है, अपने आप चल रही है। मेरे नबी ने फरमाया इसमें हैरत की क्या बात है, तुझे पता नहीं है वो अहले बैत का घर है और अहले बैत का काम करने आसमान से फरिश्ते आते हैं, फरिश्ते आते हैं बेइजाजत, जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र व शान अहले बैत। अल्लाह समझ अता फरमाए, हमें अहले बैत की मोहब्बत में जिलाए और अहले बैत की मोहब्बत में उठाए। आओ देखो हजरत अली का मकाम क्या है, कौन सा मैदान है जहां अली की तलवार नहीं चमकी है। बहादुरी अगर देखें तो अली जैसा बहादुर शेरे खुदा जिन्हें कहा जाता है, शाहे मर्दा शेरे यज़्दा कुव्वते परवरदिगार। जंगे खंदक में कुफ्फार 30,000 का लश्कर लेकर के आए थे। इस्लाम से इस तरह से फैसला तुम जंग करें कि हमेशा के लिए मुसलमानों का खात्मा हो जाए, हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। फौज सामने है, इधर मेरे आका है, सहाबा है। अमर इब्ने उद निकला, अमर इब्ने उद आया मैदान में और आने के बाद चिल्लाने लगा, हल मिन मुबाली, कौन है जो मेरे मुकाबले में आए? 1000 पहलवानों के बराबर अकेला मैं माना जाता हूँ। कौन है जो मेरे मुकाबले में कटना चाहता है? कौन है जो मेरे मुकाबले में मरना चाहता है? हजारों सवारों का एक शख्स सवारे बेबदल हूँ मैं। मुसलमानों समझ जाओ कि पयामे अजल हूँ मैं। हजरत अली खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे मैदान में जाने दिया जाए। मेरे आका ने फरमाया बैठ जाओ, वो इब्ने बुत है, हजारों पहलवानों के मुकाबले में अकेला माना जाता है। वो इब्ने उद है। अली बैठ गए, उसने फिर ललकारा, मुसलमानों तुम्हारी जन्नत कहाँ गई जिनके बारे में तुम कहा करते हो कि अगर मर गए तो जन्नत में चले जाएंगे, और जिंदा बच गए तो शहीद हैं, आओ मेरे मुकाबले में करने के लिए। अली फिर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मुझे इसके मुकाबले में जाने दिया जाए, जाने दिया जाए। नबी ने फरमाया बैठ जाओ, ये इब्ने उद है। उसने फिर ललकारा, ए मुसलमानों है कोई तुम में मर्द जो मुझसे टकराने के लिए आए? अली फिर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह अब बर्दाश्त से बाहर है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दिया जाए। नबी ने अमामा पिढ़ाया, हाथ में तलवार दिया, कहा जाओ मैदान में। और जब अली मैदान में पहुंचे हैं, नबी ने हाथ उठाया, तलवारें टकरा रही है। उसने कहा हजारों सवारों का एक शख्स सवारे बेबदल हूँ मैं, मुसलमानों समझ जाओ कि पैगामे अजल हूँ मैं। अली ने कहा सुनो, मुझको अली कहते हैं, मुझको अली कहते हैं, मैं एक बंदा खुदा का हूँ। मेरा इतना ही दावा है कि खादिम मुस्तफा का हूँ, कि खादिम मुस्तफा का हूँ। तो मैदान में आया, मैदान में तलवारें टकरा रही हैं, जरा देखिए। उसने मारा, अली बचा गए। अली ने तलवार मारी, वो भी पहलवान था, वो वार को खाली कर गया। फिर उसने कनपट्टी मारी, अली उसे बचा गए। अली ने भी वार किया, वो भी बचा गया। थोड़ी देर इस तरीके से तलवारें चलती रही, चलती रही। उसके बाद हजरत अली को जोश आया, कुव्वत हैदरी ने जोश मारा, तलवार उठाया और ऐसा जचा तुला पार किया कि वो दो टुकड़े होकर जमीन पे गिर गया। नबी दुआ कर रहे हैं, बरसल ईमान कुल्लु माल कुफ्र कुल्ली। ए मेरे मौला, अली मुकम्मल ईमान है, वो मुकम्मल कुफ्र है। दोनों का मुकाबला हो रहा है, इस्लाम का सर बुलंद कर ले। सुभान अल्लाह। इजाफत का सेहरा, इनायत का तोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इतने में नारे तकबीर बुलंद हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। अली ने दुश्मन को मार
دیکھیے تو صحیح، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ دو ٹکڑے ہو کر کے گر جایا کرتا ہے، علی نے تلوار سے بھی خدمت کی ہے۔ اچھا بہت دنوں کے بعد حضرت علی کوفہ کے جامع مسجد میں بیٹھ کر کے یہ جب واقعہ ہو گیا تو سوکھی روٹی چبا رہے تھے اور چبایا نہیں جا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا وہاں تو آپ نے خیبر میں دروازے خیبر اکھاڑ دیا اور اس کے بعد خندق میں آپ نے ان کو مار دیا، یہاں سوکھی روٹی نہیں چبا پا رہے ہو؟ تب علی نے کہا یہاں علی کی اپنی طاقت استعمال ہو رہی ہے، وہاں مصطفیٰ کی طاقت استعمال ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ فرماؤ، کسی نے کہا اگر یہ سوال کیا اے علی ذرا بتاؤ تو صحیح، جب عمر ابن عود سے ٹکر ہو رہی تھی، میدان میں تلواریں ٹکرا رہی تھی اور تم لڑ رہے تھے اکیلے ایک طرف اور 1000 پہلوان ایک طرف ہو، تو اکیلا اتنی طاقت ابن عود کے پاس تھی، اس سے لڑ رہے تھے، تو لڑتے وقت کیسا محسوس کیا تم نے؟ تو علی نے کہا اے میرے آقا، میرے نبی نے مسکرا کے پوچھا تھا، تب نبی علی نے فرمایا اے میرے آقا لو کانا کل اہل العرب فی جانب وانا فی طرف آخر لقدرت علیہ، وہ تو ایک ابن عود تھا، اگر پورا عرب ایک طرف ہو جاتا اب اکیلا علی ایک طرف ہوتا تب بھی مار کے آتا اور خالی ہو کر کے آتا۔ سبحان اللہ، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی زبان نہیں ہے صرف علی ہے اور کوئی تلوار نہیں ہے صرف علی کی تلوار ہے، صرف علی کی تلوار ہے۔ اللہ سمجھ اللہ سمجھ عطا فرمائے، یہ ہے قوت پروردگار کا جلوہ، قوت پروردگار کا جلوہ۔ آگے چلیے اور دیکھیے جنگ خیبر کا موقع۔ خیبر کے موقع پہ مرحب نامی پہلوان ہتھیاروں سے لیس لوہا پہنے ہوئے اور کئی دن سے جنگ ہو رہی ہے، خیبر فتح نہیں ہو پا رہا ہے۔ صحابہ بولے یا رسول اللہ لڑائی چل رہی ہے لیکن فتح نہیں ہو پا رہی ہے۔ نبی نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَ غَدًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، میں کل جھنڈا ایسے کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح فرما دے گا۔ ذرا زور سے سبحان اللہ۔ ایک بات جان لو آپ، غدن مانے کل، ٹھیک ہے نا؟ یہ سعودیہ بہت رات ہے، غدن مانے کل، بہت بڑھیا۔ غدن مانے کل، کون کل؟ جو چلا گئے کہ تون آئی کل دوئی میر کے ہوتے ہیں۔ غدن کا مطلب آنے والا کل، اور جو چلا گیا وہ کل امسے، امسے عربی میں بولتے ہیں اسے، جانے والے کل کو، اور آنے والے کل کو غدن، غدن استعمال ہے۔ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَ غَدًا، کل میں جھنڈا ایسے کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح فرما دے گا۔ یحب اللہ ورسولہ، آگے ٹکڑا ہے حدیث کا۔ نبی نے فرمایا وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہے۔ اب رات بڑی بے چینی میں کٹ رہی ہے، صحابہ بے چین ہیں، کل جھنڈا کس کو میرے آقا دیں گے؟ ہم کو دیں گے، ہم کو دیں گے۔ ہر ایک بے چین ہے، وہ سوچ رہا ہے ہم کو دیں گے، وہ سوچ رہا ہے ہم کو دیں گے، وہ سوچ رہا ہے ہم کو دیں گے۔ بڑی بے چینی سے رات کٹ رہی ہے۔ صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، سب لوگ بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے، امیدیں لگائے ہوئے ہیں نبی مجھے بلا لے، وہ سوچ رہے ہیں ہمیں بلا لے۔ نبی نے ایک نظر دوڑائی، آواز دیا علی ابن ابی طالب، ذرا زور سے سبحان اللہ۔ علی کہاں ہے؟ بولے اللہ کے رسول، ان کی آنکھیں آشوب کر آئی ہیں، آنکھوں میں دقت ہو گئی ہے۔ نبی نے کہا بلا کر کے لے آؤ، علی کو بلایا گیا، آئے، نبی نے تھوڑا سا اپنا لعاب دہن نکالا، علی کے آنکھوں میں لگا دیا، سبحان اللہ۔ ہم نے پوچھا اے علی اب ذرا بتاؤ کیا حال ہے؟ بولے اللہ کی عزت کی قسم یہ تو اس آنکھ سے بھی زیادہ اس میں دکھائی دینے لگا، اور آنکھ اور اچھی ہو گئی، سبحان اللہ۔ یہ نبی
नबी के लुआबे दहन की बरकत है। दस्ती नहीं है क्या? इस पे बात दीजिए जरा। दरूशी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। नबी ने कहा अली कहा, अली आ गए, आंखों में लुआबे दहन लगा दिया। लगा देने के बाद आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। नबी ने कहा ये लो झंडा और जाओ खैबर में और फतेह कर दो। हजरत अली ने झंडा लिया, पूरा लश्कर चला, आए मैदान में। मोरहब नामी पहलवान बड़ा ताकतवर माना जाता था, बड़ा कुव्वत वाला माना जाता था। आया तलवार लेकर मैदान में, सर तापा लोहे में फर्क है, महले पिए है, हाथ में तलवार है। कहा ए अली मेरे मुकाबले में आए हो, काहे मरने के लिए चले आओ? अली ने कहा कि आप तो सामने अभी पता चलेगा। तलवारें टकराती हैं, उसने मारा, अली बचा गए। अली ने मारा ढाल पे, उसने रोका। हजरते अली ने मारा, उसने ढाल पे रोक लिया और उसने तलवार का वार किया। हजरते अली ने ढाल पे रोका तो ढाल अली की टूट गई या गिर गई जमीन के ऊपर। जरा देखिए, अब बगैर ढाल के लड़ने लगे। वो वार कर रहा है, रोके कैसे? गए दरवाजा खैबर को पकड़ा और एक झटका दिया। अल्लाह की इज्जत की कसम, वो उखड़ गया, हाथ में आ गया और उठा करके उसी को ढाल बना के लड़ने लगे। उसने तलवार का वार किया, अली ने रोका। उसके बाद चाचा तुला बार बच करके ऐसा किया कि सर पे सेरा पहने भी था। तलवार पड़ी तो तलवार सेरा को काटती चली गई, हलक तक आई और हलक से चली तो काटते हुए दो टुकड़े कर दिया उसे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको मार दिया। उसके बाद खैबर फतह हो गया। लड़ने के बाद, लड़ाई जंग के बाद जब दरवाजे को फेंका है उठा करके दूर, तो कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है 40 आदमी मिल करके उसे हिला रहे थे तो हिला नहीं पा रहे थे। उसको अली ने एक हाथ से उखाड़ दिया। और हो क्यों ना, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। कुव्वत परवरदिगार का नाम अली है, शेरे खुदा का नाम अली है, मुस्तफा के एतमाद का नाम अली है। जरा देखिए, इस तरह से तलवार चलाई है मेरे आका हजरत अली ने इस्लाम को बचाने के लिए। ये तो तलवार का जौहर हो गया। और आगे देखिए, हजरत अली के इल्म का भी कोई जवाब नहीं है। इल्म का, एक बार एक यहूदी आया हजरत अली के पास और बोला आप क्या कहते हो, कुरान में सब कुछ है? अली ने फरमाया मैं नहीं कहता, कुरान कहता है तिबयानन लिकुल्लि शै, हर चीज का बयान इसमें, सब कुछ इसमें। तो उसने कहा सब कुछ इसमें। अब आपके बारे में लोग कहते हैं कि अली को पूरे कुरान का इल्म है, तो बोले है? अली ने कहा बेशक है। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बताऊं आपको एक बात, पूरा कुरान सूरे फातिहा में, कहा? पूरा कुरान सूरे फातिहा में, और मुकम्मल सूरे फातिहा के बिस्मिल्लाह में, और मुकम्मल बिस्मिल्लाह के बे में, और पूरा बे बिस्मिल्लाह बे के नीचे वाले नुक्ते में। मतलब अगर बे के नुक्ते को फैला दो, नुक्ता फैला दो तो बे बन जाए, और बे को फैला दो तो बिस्मिल्लाह बन जाए, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को फैला दो तो सूरे फातिहा बन जाए, और सूरे फातिहा को फैला दो तो पूरा कुरान बन जाए। कुरान को समेट दो तो सूरे फातिहा बन जाए, सूरे फातिहा को समेट दो तो बिस्मिल्लाह बन जाए, बिस्मिल्लाह को समेट दो तो बिस्मिल्लाह का बा बन जाए, और बा को समेट दो तो बा का नीचे वाला नुक्ता बन जाए। अब अली का फरमान सुनो, अली कहते हैं वो आना नुक्ता तो तहतल बा, और बे के नीचे जो नुक्ता है वो अली है, वो अली है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बे के नीचे जो नुक्ता है वो अली है, मतलब उस नुक्ते को मैं जानता हूँ। तो जो बे का नुक्ता जाने वो बिस्मिल्लाह जानेगा, और जो बिस्मिल्लाह जाने वो सूरे फातिहा जानेगा, जो सूरे फातिहा जाने वो पूरा कुरान जानेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा आपको पूरे कुरान का इल्म है? अली ने कहा बिल्कुल है। बोलो तुम ये बताओ, ये इतना घुमावत का है, काव का है, चाहे तो मेन बतिया बोलो।
یہ ہے کہ یہ نہیں ہے, ایسا ہے ویسا ہے کیسا ہے، اتنا لمبا کا ہے چکر لگا رہا ہے، مین پوائنٹ پہ آ، مین بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا بات یہ ہے اگر سب کچھ قرآن میں اور آپ کا دعویٰ ہے کہ پورا قرآن آپ کو معلوم علم ہے، تب پھر ایک سوال ہے۔ تو علی نے کہا بس پہلوے کے لیے ہوتے ہو اتنا کل کہاں کرے کہ ایسا ہے تو ویسا ہے، بولو کیا سوال ہے، بولو کیا سوال ہے؟ تو وہ جو آیا تھا یہودی سوال کرنے، اس کی داڑھی بڑی لمبی اور بڑی گھنی تھی، اس کی داڑھی میں 1-2 بال تھے کہیں کہیں، جو یہودی آیا تھا۔ حضرت علی کی داڑھی بڑی گھنی تھی، بڑی گھنی داڑھی تھی اور بڑی لمبی داڑھی تھی، پورا چہرہ بھرا ہوا تھا حضرت علی کا داڑھی سے، بڑی گھنی داڑھی تھی، اور یہودی کے چہرے پہ کہیں ایک بال ادھر ہے تو پھر 1 کلومیٹر پہ ایک بال یہاں ہے، ٹھیک ہے، پھر اتنی دور پہ ایک بال یہاں ہے، بڑا ہمارے ادھر کھجر بولتے، کھجر داڑھی تھی، یعنی کہ ایک ٹھو یہاں ہے تو ایک ٹھو 1.5 کلومیٹر دور یہاں ہے تو ایک ٹھو ادھر، تو اس طریقے سے داڑھی۔ تو اس نے کہا آپ کہتے ہو قرآن میں سب کچھ، قرآن میں سب کچھ، اب آپ کو قرآن کا علم ہے تو اتنا بتا دو آپ کی گھنی داڑھی کہاں قرآن میں ہے اور میری یہ داڑھی کہاں قرآن میں ہے، ٹھیک ہے نا، میری یہ داڑھی کہاں قرآن میں ہے۔ اب بولو آج کے مولانا صاحب نہیں، محقق و مفتی صاحب کے لگا چلا جاؤ، ٹھیک ہے، اور ان سے آپ کہہ دیجئے کہ حضرت یہ بتائیے کہ یہ میرا موچ کہاں قرآن میں ہے، جب سب کچھ ہے، ہاں تو بتا دی۔ ایک آدمی امام اعظم کے پاس آیا اور بولا حضرت درہم یا دینار کی تھیلی کہوں گھر میں کھن کے گاڑ دیا تھا، بھلائے گین کہاں ہے، تنکہ آپ بتا دیجئے تو کہاں ہے، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ پیسے تھیلی میں رکھ کے زمین میں گاڑ دیا تھا، بھول گیا کہاں ہے بتا دیجئے۔ اب آئیے وہ بھی ایک عالم تھے اور ایک عالم ہم لوگ آ کے پوچھئے کہ حضرت وہ گھر میں کہیں پیسہ رکھ دیا تھا، وہ بتا دیجئے آپ کہاں ہے، تو یہ سر پکڑ لیں گے، نماز کا مسئلہ تو بتا ہی نہیں پائی تھے، تو آیا پیسہ پوچھے کہاں ہیروائی دیا، چکر لگاؤ پورے علاقے کا، کہیں گرا دو، اس کے بعد ہماری جان آ کر کے کھاؤ کہ پیسہ کہاں گرا دیا، ٹوپی کہاں گرا دیا، یہ ہم کیا بتا پائیں گے۔ وہ آیا کہا حضرت تھیلی گم ہو گئی ہے بتا دیجیے۔ امام اعظم نے فرمایا جا رات میں 2 رکعت نماز کی نیت باندھنا اور کھڑے ہو جانا مصلی پہ، کھڑے ہو جانا مصلی پہ نوافل کی نیت کر کے کہ پوری رات پڑھوں گا، نیت باندھ کے کھڑے ہو جانا پڑھنے کے لیے، تیری تھیلی مل جائے گی صبح ہوتے ہوتے۔ یہ 2 رکعت کی نیت جیسے باندھ کے کھڑا ہوا خشوع و خضوع کے ساتھ، ویسے پڑھتے نہ پڑھتے لیکن اب پیسہ حیران ہے تو پڑھائی پری، پیسہ ملنے کی بات ہے، بڑے خشوع سے بڑے دل جمعی سے کھڑا ہوا مصلی پہ، اور جیسے پڑھنا شروع کیا تب تک شیطان نے آ کر کے دل میں بتا دیا ارے پیسہ تو پچھوڑوا گاڑا ہے، وہ پھلا کونے پہ گاڑا ہوا ہے، ادھر پیسہ ہے، یاد دلا دیا۔ اب کہاں نماز میں کل خشوع باطل، جلدی پھٹاک سے پورا کیا، بھاگے کدال اٹھایا گیا، کھودا اور پیسہ مل گیا۔ صبح پہنچے امام اعظم کی بارگاہ میں، ارے کیا نسخہ دیا آپ نے، ایسا بتایا آپ نے کہ پیسہ تو پہلی رکعت ہی میں یاد آ گیا۔ تو بولے پھر کیا جلدی نماز مکمل کیا، پیسہ نکالا، تو بولے نماز پھر پڑھے نہیں پڑھے، اسی لیے پڑھ رہا تھا، تو اب کہاں پڑھیں گے، وہ تو مل گیا۔ امام اعظم نے ڈانٹا، بولے کہ تو نے غلطی کی، اگر میں جانتا تھا کہ پوری رات تجھے شیطان پڑھنے ہی نہیں دے گا، اگر تو پوری رات پڑھتا امید تھی کہ اللہ ولایت عطا کر دیتا۔ آپ اندازہ فرماؤ مسلمانوں، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت علی کے پاس آیا یہودی، آپ کی گھنی داڑھی اور میرے 1-2 بال جو یہاں وہاں ہے، یہ قرآن میں کہاں ہے بتا دو۔ آج کا عالم ہوتا حیران ہو جاتا، یہ کہاں ڈھونڈیں گے، تیری داڑھی کہاں ہے، تیرا موچ کہاں ہے، قرآن میں کہاں تلاش کریں۔ آج کا عالم ہوتا تو بولا نہیں معلوم ہے، جواب دے دیتا، بھگا دیتا، کہہ دیتا یہ کہاں ڈھونڈے۔ علی مسکرائے، بولے ہے تو قرآن میں، وہ ہکا بکا رہ گیا، بولے کہاں ہے قرآن میں دکھاؤ۔ علی نے کہا دیکھ 8واں پارہ ہے، سورہ اعراف ہے، اللہ فرماتا ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج
इल्ला नाकिदा, वो जमीन जो अच्छी होती है वहाँ फसलें अच्छी उगती है, अब वो जमीन जो बंजर होती है वहाँ एक पौधा और दो पौधा उगता है। तो बंजर जमीन तेरी दाढ़ी है, अच्छी जमीन मेरी दाढ़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई ना सबके? कितना शानदार जवाब दिया, जरा देखिएगा कितना गजब का जवाब है। सुन लो तो ईमान ताजा हो जाए। आप लोग खेती करते हैं नहीं करते? करते हैं ना? तो बंजर जमीन हो अच्छी जमीन तो मालूम ही होगा। बंजर जमीन में चाहे जितना खाद लाग डाल दो, यूरिया फलाने धमाके, वो कुछ नहीं जरी जाता आए। तो वही हजरत अली ने कहा बंजर जमीन तेरी दाढ़ी है और अच्छी जमीन मेरी दाढ़ी है तो तस्करा हक्का बक्का रह गया, करता क्या वापस चला गया। अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। पैगंबर ने फरमाया है वो जलवा यहाँ देखने को मिल रहा है, वो जलवा यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर हाँ ठीक है, तवज्जो मेरी तरफ है ना? जरा सुनिए, एक बड़ी अच्छी बात अभी अभी याद आ गई तुरंत, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत बात है, तवज्जो फरमाइए। एक आदमी बाहर था और उसने अपने गांव वाले को जब वो आने लगा तो उसको 10,000 दिरहम दिया, कहा ले जाए हमारे लड़के को गांव पे दे देना कमाने के लिए। मान लो सऊदी गए, बंबई गए, तो एक आने लगा वहां से, तो जो वहां था उसने कहा हमारे घर पे ये 10,000 ले जा करके दे देना, 10,000 दिरहम। तो कहा क्या जानते हो? उसने कहा ये 10,000 दिरहम ले जाओ, जब मेरा बेटा तुम्हें मिलेगा तो इसमें से जो तुम चाहो वो उसे दे देना, जो तुम चाहो वो उसे दे देना। अब वो इख्तियार तो इतना दे दिया, अब वो वहां से आया और जब आए तो नीतियाँ बदल गई, नीयत बदल गई। कहा अगर ऐसे सब धर रख लेते तो कहते कि ये बेईमान है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो इसके बाप ने इख्तियार दिया, एक काम करो कि कुल धई लियो, खाली नाव कह दो, बस हमें तो रास्ता दिया है, इसमें से जो तू चाहे वो उसे दे देना। तो 1,000 निकाल के उसको देने लगा और 9,000 अपना रख लिया। बता दिया लड़के को तेरे बाप ने 10,000 दिया, लेकिन ये भी कहा है कि जो तू चाहे वो उसे दे देना। तो 1,000 तुम ले लो और 9,000 मैं रखता हूँ। उस लड़के ने कहा इतना दूर से लाए हो, माना कि मेहनत लगी है, आप हिफाजत करके लाए हो, माना मेरे बाप ने कहा है जो तुम चाहो वो उसे दे देना, लेकिन अब ऐसा थोड़ी होता है कि 9,000 तुम ले लो और 1,000 मुझे दो। अरे 2,000 ले लो आप, 3,000 आप ले लो, 7,000 मुझे दे दो, पैसा तो मेरा ही है। इतना अंधेर थोड़ी होता है कि 1,000 मुझे दो, 9,000 तुम ले लो, मैं नहीं लूंगा 1,000। तो इसने कहा लो चाहे ना लो 1,000, तुम्हारे बाप ने हमसे कहा था जो तुम चाहो वो उसे दे देना, तो मेरी मर्जी है, मैं 1,000 दे रहा हूँ। उसने कहा नहीं लेगी। दोनों झगड़ गए, हजरत अली के पास पहुंचा मुकदमा। हजरत अली ने कहा मैटर क्या है? कहा इसका बाप पैसा देने लगा 10,000 दिरहम, तो मुझसे कहा था जो तुम चाहो वो उसे दे देना, तो मैं इसको 1,000 दे रहा हूँ और 9,000 खुद ले रहा हूँ, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। उसने कहा ए अली अमीरुल मोमिनीन, मैं कैसे मान लूं मेरे बाप का पैसा है, 10,000 है, तो कम से कम अगर ये 2,000 ले ले, 3,000 ले ले, चलेगा, कुल का कुल ये रख ले, ये तो पूरा पेड़ोइये साफ किया है, हाँ? एकदम साफ कर दिया, जड़िए से काट दे रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। हजरत अली मुस्कुराए और इससे बोले जो पैसा लेके आया था, ये 2,000 3,000 जो दे रहा है ले लो ना, इसके बाप का पैसा है, दे दो तुम उसको, 7,000 दे दो, 8,000 दे दो, जितना वो कह रहा है उतना ले लो, 2,000 कह रहा है, 3,000 कह रहा है, उतना ले लो, उसी का तो पैसा है। ये कह रहा है नहीं हजरत अली ये फैसला गलत है, ये मैं नहीं मानूंगा। इसके बाप ने कहा था जो तुम चाहो वो उसे दे देना, तो फिर मेरी मर्जी है, मुझे जब इख्तियार दिया गया है तो फिर मैं गलत कैसे हूँगा? हजरत अली ने कहा अगर सही फैसला चुनना चाहता है, अभी तो मैं दोनों को समझा करके बात खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन अगर फैसला ही करवाने पे लगा हुआ है तो सुन, मेरा फैसला ये है कि 9,000 उसका है और 1,000 तेरा है, 1,000 तेरा है, 9,000 उसका है जिसके बाप ने दिया है, 1,000 तेरा है। तो इसने कहा ए अली ये कैसे? आप
مجھے سمجھائیے کیسے اس کا نوزائیدہ ہو گیا؟ تو علی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ اس کے باپ نے کیا کہا تھا؟ تب یہ بولا اس کے باپ نے کہا تھا جو تم چاہو وہ اسے دے دینا. تو بولے یہی تو بات ہے, یہی تو کہا تھا نا, جو تم چاہو. دماغ تیز, مائنڈ تھوڑا تیز کیجئے, عقل کو تھوڑا تیز کیجئے. جو تم چاہو وہ اسے دے دینا. سبحان اللہ. ذرا ہاتھ اٹھا کے بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ دماغ تھوڑا تیز کیجئے. جو تم چاہو وہ اسے دے دینا. تو بولے 1000 دے کے 9000 روکا, اس کا مطلب 9000 تم نے اپنے لیے چاہا, اور یہی اس کے باپ نے کہا تھا جو تم چاہو وہ اسے دے دینا. تو 9000 اس کا ہوا, 1000 تیرا ہوا. سبحان اللہ. یہ فیصلہ علی کا ہے, جہاں پہنچ کر بڑے بڑے عقل والوں کی عقل حیران ہو جاتی ہے. اور حیران کیوں نہ ہو, پیا ہے بارگاہ مصطفیٰ سے علی نے, لیا ہے بارگاہ مصطفیٰ سے علی نے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ فیصلہ علی کا ہے. اللہ سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں بزرگوں کی محبت میں جلائے, بزرگوں کی محبت میں اٹھائے. ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے, پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. وفی انفسکم افلا تبصرون کی تفسیر میں, تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہوا ہے, حضرت علی نے ایک بار فرمایا سلونی اما دون العرش. منبر پہ کھڑے ہوئے اور بولے اے لوگو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو, عرش کے نیچے کی چیزیں جو کچھ بھی تم پوچھو گے میں جواب دے دوں گا. ایک یمنی آدمی کھڑا ہو گیا, بڑا بھاری بھاری دعویٰ کرتے ہو آج میں سوال کروں گا اور ایسا سوال کروں گا کہ یہ جواب نہ دے سکیں گے. علی نے کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو, لیکن خبردار امتحان کے لیے نہ پوچھنا, جانکاری کے لیے پوچھنا. اس نے کہا پوچھ رہا ہوں. اس نے سوال کیا اے علی کیا آپ نے اللہ کو کبھی دیکھا ہے؟ جس اللہ کی عبادت کرتے ہو. تو علی نے کہا اللہ کے عزت کی قسم علی اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھے نا. تم دیکھنے کی بات کرتے ہو, سر کو سجدے میں رکھنے کے بعد علی اس وقت تک سر کو نہیں اٹھاتا جب تک اپنے مولا کا دیدار نہ کر لے, اپنے مولا کا دیدار نہ کر لے. سبحان اللہ. اتنا سننا تھا, وہ گرا بھی ہوش ہو گیا, اور جب ہوش میں آیا تو اس نے کہا اب میں کبھی علی سے سوال نہیں کروں گا. یہ بات ختم ہو گئی. اتنے میں ایک آدمی اور آ کر کے کھڑا ہو گیا, سامنے کھڑا ہو گیا. اے علی ایک سوال میرا بھی ہے. کہا کیا ہے؟ علی نے کہا کیا ہے؟ وہ بولا بتاؤ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ حضرت علی نے جبریل کی جگہ سدرہ پر دیکھا تو وہاں جبریل کو نہیں پایا. مشرق میں دیکھا جبریل کو نہیں پایا, مغرب میں دیکھا جبریل کو نہیں پایا, شمال میں دیکھا جبریل نہیں ملے, جنوب میں دیکھا جبریل نہیں ملے, روئے زمین پر دیکھا جبریل کو نہیں پایا. پہلے آسمان, دوسرے آسمان, تیسرے آسمان, سدرہ پر, ان سب جگہوں پہ دیکھا. جب جبریل نہیں ملے تو مسکرائے علی, بولے جبریل وہی ہے جو میرے سامنے کھڑا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ جبریل ہی ہے جو سوال کر رہا ہے. سوال کیا گیا آپ کو کیسے معلوم کہ یہی جبریل ہے؟ علی نے کہا جب تم زمین میں بھی نہیں ہو, اپنی جگہ پر بھی نہیں ہو, تو پھر ایک ہی جگہ بچی ہے, وہ میرے سامنے, یہی تو جبریل امی ہے. ذرا دیکھیے یہ علم ہے جبریل کا. ایک آدمی اور کھڑا ہو گیا, میں ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں. علی نے کہا پوچھ ہی لو, آج سب پوچھ لو جو پوچھنا ہے. کھڑے ہو گئے. اس نے کہا کہ میں کوئی ایسا سوال نہیں کروں گا. کہا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا بس اتنا بتا دو, اتنا علم کہاں سے آ گیا, یہ جانکاری کہاں سے آ گئی, علم کا ایسا پھوٹتا ہوا سمندر, یہ کیسے علم آ گیا, اتنی نالج کہاں سے ہو گئی, اتنی جانکاری کہاں سے آ گئی؟ تو حضرت علی نے کہا سنو, جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا, میں بھی تھا غسل دینے والوں میں. غسل دینے کے بعد جب نبی کو تختے پہ لٹایا گیا تو نبی کے پلکوں پہ پانی کے چند قطرے رکے ہوئے تھے. میری محبت نے جوش مارا, میں آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کے اپنی زبان سے ان پانیوں کو چاٹ لیا. اللہ کے عزت کی قسم جیسے میں نے چاٹا میرا سینہ علم کا مدینہ بن گیا, علم کا مدینہ بن گیا, سماتا ہو جاتا ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ذرا دیکھیے علم اگر دیکھیں گے
तब भी अली का कोई जवाब नहीं है। मकाम मर्तबा देखेंगे तब भी अली का जवाब नहीं है। एक किताब लिखी गई है कलयूबी, कौन सी किताब है? कलयूबी, जो दरसगाह में पढ़ाई जाती है, पढ़ते हैं मौलाना साहब लोग जो दूसरी या तीसरी जमात में, अरबी में किताब है वो पढ़ाई जाती है। उस किताब के अंदर लिखा हुआ है कलयूबी, अल्लामा शहाबुद्दीन, शेख शहाबुद्दीन कलयूबी की लिखी हुई किताब उनकी। और वो मतलब ऐसी किताब नहीं, वो कोर्स में चलती है, कोर्स में मौलाना लोग दूसरी या तीसरी जमात में उन्हें पढ़ाई जाती है किताब कलयूबी। उसके अंदर लिखा हुआ है एक गुलाम को लाया गया हजरत अली की बारगाह में जो चोरी किए हुए था। क्या किए हुए था? चोरी किए हुए था। हजरत अली ने उससे पूछा, ये बता तूने चोरी की है? वो बोला, हाँ अली मैंने चोरी की है। अली कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, अली ने फिर कहा, बताओ तूने चोरी की है? वो बोला, हाँ अली मैंने चोरी की है। अरे क्यों होते तो कहते कि नहीं मैंने नहीं किया है, ऐसन है तो वैसन है, हमको फंसा दिया गया है, ये है अपनी सफाई। जब दोबारा अली ने पूछा तूने चोरी की है? बोला मैंने चोरी की है। अली फिर खामोश हो गए। फिर तीसरी बार में अली ने कहा, बता तूने चोरी की है? उसने फिर कहा, हाँ मैंने चोरी की है। थड़ा थड़ा बताता जा रहा। 3 बार जब इकरार कर लिया तो अली ने कहा, तलवार लाओ। तलवार लाया गया और चोरी करने की सजा शरीयत में चोर और चोरनी का हाथ काट लिया जाए। कुरान फरमाता है चोर का भी हाथ काट दो और चोरनी का भी हाथ काट दिया जाए। इस कानून के मुताबिक उसका एक हाथ काट दिया गया। हजरत अली ने काट दिया। अब वो अपना हाथ ले लिया, जो हाथ काटा गया वो हाथ में दूसरे में पकड़ लिया और वहां से चला। जब हाथ काट दिया गया तो वहां से चला, सजा उसे मिल गई, चोरी भी। रास्ते में जा रहा था, इतने में सलमान फारसी आ रहे थे। मुलाकात हो गई, हाथ में लिए हुए है कटा हुआ हाथ जिससे टपक रहा है खून। हजरत सलमान फारसी ने पूछा, तेरा हाथ किसने काट दिया? तो वो क्या कह रहा है जानते हो? इमामुल मुत्तकीन सैयदुल औलिया, इमामुल औलिया, मंबे फैज़ो अता, मरकज़े जूदो सखा, दामादे मुस्तफ़ा, शेरे खुदा, कुव्वते परवरदिगार, अली ने काटा है। इतना लंबा चौड़ा करने के बाद तब बताया। सलमान फारसी मुस्कुराने लगे, बोले कि तो यक्का हथवा काटी नहीं, तब इतना लंबा तारीफ करो तो कहूँ दोनों काट दिए होते तो 1 घंटा और कहते। हाँ, वो बोले हाथ काट दिया तो इतनी तारीफ कर रहा है। दामादे नबी और मरकज़े फला, इमामुल मुत्तकीन, फला फला, अली ने काटा है। तुम्हारा हाथ भी काट दिया और तुम इतनी तारीफ कर रहे हो। तो ये आदमी बोला, ए सलमान, अली ने मेरा हाथ काट के मुझे जहन्नम से बचा लिया है। सुभान अल्लाह, मेरे ऊपर एहसान किया। जरा देखिए पहले के लोग कैसे थे। आज का आदमी होता तनिक सा ऐसे चढ़ाई दियो, माचिस के तीली लगाई दो तो पेट्रोल का बढ़ी जाता है। हाँ, तुरंत शुरू हो जाते। उस साथी ने कहा, सलमान, मुझे अली ने मेरा हाथ काट के जहन्नम से बचा लिया है, ये उनका एहसान है इसलिए तारीफ कर रहा हूँ। सलमान फारसी वहीं आ रहे थे अली की बारगाह में। अली के पास में पहुंचे जब बारगाह में, तब सलमान ने बताया, अरे वो जिसका आपने हाथ काट दिया है, चोरी किया था, वो जा रहा था रास्ते में, मैंने पूछा किसने हाथ काटा, तो उसने लंबी चौड़ी तारीफ की। कहा, इमामुल मुत्तकीन सैयदुल औलिया, इमामुल औलिया, दामादे नबी, शेर खुदा, कुव्वते परवरदिगार, अली ने काटा है, अली ने काटा है। बड़ी तारीफ कर रहा था, बड़ी तारीफ कर रहा था। तो मैंने कहा, उन्होंने तेरा हाथ भी काट दिया और तू जो है तारीफ भी कर रहा है। तब वो बोला, अली ने मेरा हाथ काट के जहन्नम से बचा लिया है। इतना सब सुना जब अली ने, तब याद रखो मुस्तफा के घराने के हैं। रहमत का समंदर जोश में आया, खादिम को भेजा, जाओ उसको बुला के ले आओ वापस। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से सुभान अल्लाह। बोले, जाओ बुला के ले आओ।
خادم آیا, جلدی جلدی راستے میں پکڑ لیا, چلو تمہیں علی بلا رہے ہیں, علی بلا رہے ہیں. یہ ہاتھ میں ہاتھ لیے ہوئے ہے, کٹا ہوا ہاتھ, واپس آیا, خون ٹپک رہا ہے. علی نے بلایا, کہا قریب آ, قریب گیا تو یہ کاٹا گیا تھا. علی نے کہا یہی رکھا زمین کے اوپر. علی نے پنجے کو ملایا اس میں, اور ملانے کے بعد ایک کپڑا منگایا, کپڑا منگانے کے بعد اوپر ڈال دیا, اس کے اوپر ڈال دیا, اور اوپر ڈالنے کے بعد اللہ عالم بالثواب نہ جانے کیا پڑھا, لمحائے مبارک حرکت میں ہوئے, اور پڑھنے کے بعد اوپر کپڑے کے پھونکا, اور پھونکنے کے بعد کپڑا پکڑ کے کھینچا. اللہ کے عزت کی قسم ہاتھ سلامت ہو گیا, جڑ گیا, اور ہاتھ کام کرنے لگا. یہ میرے باپ کی بولی نہیں, قلیوبی میں لکھا ہے, میں دکھاؤں گا, لکھا ہوا ہے. کہنے دو جب علی کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا, علی کے نبی کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. اللہ سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ان بزرگوں کی محبت پہ جلائے, بزرگوں کی محبت پہ اٹھائے. اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دیکھو یہ حال ہے صحابہ کا, یہ حال ہے صحابہ کا. اگر قانون شریعت پر عمل کرتے ہوئے سزا دینا جانتے ہیں تو اگر رحم آ جائے تو کاٹ کر کے جوڑنا بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ اندازہ فرماؤ, آج وہابی کہتا ہے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتے. معاذ اللہ, کس کے بولو معاذ اللہ. ارے ان کے بے ایمانی اللہ تعالیٰ ان سے دور رکھے. بخاری شریف باب و باس علی ابن ابی طالب الیمن. آئیے حضرت, ماشاءاللہ 11-14 پہ آپ آگئے. بخاری شریف باب و باس علی ابن ابی طالب الیمن اور کتاب الانبیاء, ان دونوں جگہوں پر حدیث پاک موجود ہے. ان کا تو ہم ہر ایک کا ثبوت حدیث سے دے دیں گے. جانتے ہیں آپ, کچھ سونا آیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں, نبی بانٹنے لگے, یہ تیرا, یہ تیرا, یہ تیرا, یہ تیرا, یہ تیرا. اتنے میں ایک کھڑا ہو گیا کہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں, آپ انصاف کرو, اللہ سے ڈرو. اتق اللہ یا محمد, اے محمد اللہ سے ڈرو اور انصاف کرو, انصاف کرو. نبی نے فرمایا وَمَن يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ, میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا انصاف. سب سے بڑا انصافور بن کے میں آیا ہوں. وہ جانے لگا. حضرت عمر نے کہا نبی حکم دے گردن مار دوں. بڑے جلالی تھے نا, یہ ہر دم گٹائیے کاٹے سوچت رہے جیسے کیوں کچھ گڑبڑ کرے. انہوں نے کہا دانی لازر باون کا, مصطفیٰ کی توہین میرے سامنے, نبی حکم دیجئے گردن مار دوں. ارے نبی نے کہا بیٹھو, کچھ تو رکو تھوڑا سا, بیٹھیے. نبی نے ان کو بیٹھایا. اس کے بعد وہ جب پیچھے مڑ کے جانے لگا تب جانتے ہیں نبی نے کہا جانے دو. یخرج من ذی قوم یتلون کتاب اللہ رقبا لا یجاوز حناجرهم, جانے دو اسے, اس کے نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن کی تلاوت رو رو کے پڑھیں گے لیکن ان کے حلق بس نیچے نہ آئی جائے گی, ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. وہ جس نے نبی کی گستاخی کی تھی کون تھا جانتے ہو آپ, کیسے تھا وہ؟ بخاری شریف میں آیا, 2 حوالہ دیا میں نے, کتاب الانبیاء میں بھی ہے, باب و باس علی ابن ابی طالب الیمن میں بھی ہے. اور یاد رکھیے اس دعوے کے ساتھ جس کو اگر نہ ملے تو ابھی 4-5 دن میں رہوں گا. حدیث میرے پاس لاؤ, میں دکھاؤں گا, میں بول رہا ہوں, میں ذمہ دار ہوں. اور اگر نہ ملے گولی مار دو مجھے, منبر پہ بول رہا ہوں میں. یاد رکھیے گا یہ شیر رضا کے در کا کتا ہے, یہ گلا لفظ بولے گا اپنے باپ کا نہیں, فیضان سے کرے گا, حضرت کی عطائیں دے گا آپ کو. یاد رکھیے گا بخاری شریف کے اندر ہے غائر العین, مشرف الوجنتین, ناشز الجبہ, کس اللحیہ, محلوق الراس, مشمر الازار. اس کی داڑھی بڑی لمبی لمبی تھی, گھنی تھی, ہے نا,
आंखें धसी हुई थी, पेशानी उभरी हुई थी, महलूकुर रास सर मुड़ा हुआ था, सर मुड़ा हुआ था, और दाढ़ी बड़ी। कौनो किसी वहाबी को देखा है इतना नीचे इतना लंबा कर लेते हैं कि सोचे पड़ते कि ये और कमावा कैसे करत हुई है। आए सोचना पड़ता है, नहीं सोचना पड़ता है। आए कहाँ किस दर्जे को पहुंच जाता है। तो दाढ़ी घनी लंबी और सर मुड़ा हुआ, आंखें धसी हुई, पेशानी निकली हुई, ये अलामत उस गुस्ताख की जो बुखारी में बताया नबी ने, वो तो है ही है। एक अलामत जो आखिर में बताया, मुशम्मिरुल एजार, एजार के माने एक लुगत में देखा मैंने तो तहबंद लिखा है, और एक दूसरी लुगत में देखा तो पैजामा लिखा है, और शम्मरा जो शम्मेरो माने होता है उटंगा कर लेना। अब मुशम्मिरुल एजार का मतलब उसका पैजामा उटंगा था। याद रखिएगा, हम तो वो है जो तेरे पैजामे को भी बुखारी से दिखा देंगे। याद रखिएगा, कहाँ है तू, किस फूल में है तू, याद रख, हम वो है जो तेरा एक एक जूस बुखारी से दिखा देंगे। अब तेरा पैजामा उठा हो हम बुखारी पढ़े, तेरा पेट दर्द हो तो हम क्या करें, काहे अपने बप्पा घट बनाया हो। हमारी क्या गलती है, हमारी क्या गलती है। जर्रा बराबर अगर आपको शक लग रहा है तो लाइए बुखारी, मैं बैठा हूं, मैं जिम्मेदार हूं इसका, मैं दिखाऊंगा इसे। मुशम्मिरुल एजार और सारी लुगत भी बता रहे हैं, दो लुगत देखा, एक में लिखा है तहबंद और एक में पैजामा। अब चाहे पैजामा लो चाहे तहबंद लो, मुशम्मिरुल एजार तहबंद लोगो तो तहबंद उटंगा था, और पैजामा लोगे तो पैजामा उटंगा था। तो हमें तहबंद पैजामे से नहीं मतलब है, हमें बहस उटंगे से है। बात समझ रहे हैं ना। तो क्या है, अल्लाह ताला इनसे बचाए। ये अहले हदीस है, ये हदीस इनको नहीं दिख रही है, ये हदीस दिखाई नहीं पड़ रही है, बुखारी में मौजूद है। गड़बड़ करने से और चिल्लाने से कोई अहले हदीस नहीं हो जाता। हदीस अगर पढ़ना है तो पहले इसके मुस्तफा पैदा कर, इसके मुस्तफा पैदा कर, अल्लाह समझ अता फरमाए। फिर हम आपको बता रहे हैं, आप ये ना समझिएगा कि यहाँ सब सुन्नी बैठे हैं, आप हमारे हो। हाँ ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। मैं जहाँ रहता हूँ चारों तरफ से सड़े सड़े वहाबी हैं, मगर कसम है रब्बे काबा की और फैज़ है शेरे सुन्नत का, सड़े सड़े वहाबियों में एक नहीं, सब मिल करके इतनी ताकत नहीं है जो सामने आ सके और एक लफ्ज भी बहस करके। याद रखिएगा, अब्दुल लोग झंडा नगरी जैसे लोग वहां रहते हैं और दीगर लोग सड़े सड़े वहाबी रहते हैं, बुलाने पे भी घबराते हैं। एक बार जा रहा था रास्ते से, मेरा घर रोडी पे और मार्केट है, तो आते हैं चाय पानी सामान लेने, जा रहा था, मेरा मूड भी बड़ा नहा धुल करके बैठा, खुश मिजाज था मैं, तो हमने कहा लाओ इसको तंग करूं। बुलाया मैंने, रमजान का महीना था, तो हमने कहा कि एक बात सुनो, तो बोले क्या। हमने कहा कल का पेपर आउट हुआ है, मैंने पढ़ा है उसमें कि सऊदी में ये कानून लगाया गया कि जो रोज़ा तोड़ देगा उसको झाड़ू लगाने की मस्जिद में सज़ा दी जाएगी। क्या मस्जिद में झाड़ू लगाने की सज़ा दी जाएगी, ये पेपर में कल के आउट हुआ है, मैंने पढ़ा, मेरे घर में रखा है, कहो तो दिखाऊं। तो उसने कहा कहना क्या चाहते हो। हमने कहा बस इतना सवाल है कि मस्जिद में झाड़ू लगाना ये सज़ा है या इनाम है, बस इतना बता दे। मस्जिद में झाड़ू लगाना ये जुर्म की सजा होती है या अल्लाह की तरफ से आता होती है, जो लगा दे वो किस्मत वाला होता है। रोजा तो इसको सजा कहना किस हद तक ठीक है। तो उसने कहा जे लिखी से जे करी सी वन से जाके सो हम ना जानी, हमको नहीं पता है। तो हमने कहा मुझे मालूम था, अगर कह दोगे पता है तो भी बात बहुत लंबी होगी। अब वो हमको जानते हैं ना, वो बोले हम नहीं जानते हैं, ये सब बात हमसे मत कीजिए। हमने कहा ठीक है जाओ, अल्लाह समझ अता फरमाए। ये सब बताने का सिर्फ मतलब ये है, इतना मकसद है। याद रखिएगा, ये बताने का ये भी मकसद नहीं है कि मैं बहुत काबिल हूँ, नहीं, 1000 बार तौबा, मैं आला हजरत के दर का कुत्ता हूँ, मैं आपका नौकर हूँ, मुझे ड्यूटी पे लगाया गया है। फूकते रहो, चिल्लाते रहो, ड्यूटी पे लगे रहो, वहाँ भी इनका ईमान न छीनने पाएंगे।
वही मेरी ड्यूटी है, याद रखिएगा, बस और कुछ मकसद नहीं है। अल्लाह समझ अता फरमाए और आपको नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। तो बात क्या चल रही थी? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर हाथ काटना जानते हैं तो जोड़ना भी जानते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वही है। जरा देखिए शहीद किसने किया था? अब्दुर्रहमान इब्ने बिलजिम नाम है उसका, उसने शहीद किया था। पूरी मीटिंग की गई, हजरत अली को क्या किया जाए, कैसे शहीद किया जाए, तलवार। हजरत अली जब उसे देखते, ये भी देखो अजीबो गरीब मामला, हजरत अली से जब मिलता वो कहीं रास्ते में जाते हुए हजरत अली देखते, और हवाला ले लो किताब का, इज़ालतुल खिफ़ा, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी वो लिखते हैं हजरत अली कभी देखते उसको रास्ते में जाते हुए तब मुस्कुराते, बोले इसको जिंदगी का मैं इरादा रखता हूँ और ये मुझे कत्ल करना चाहता है, ये मुझे कत्ल करना चाहता है। रास्ते में देखते तो कहते हाज़ा कातिली, ये मेरा कातिल है, ये मुझे कत्ल करेगा। अली कहते लोगों से, तो लोगों ने कहा अला तक़्तुलूनी, ए अली जब आपको पता है कि आपको शहीद करेगा, कत्ल करेगा, तो आप इसे मरवा क्यों नहीं देते? तो अली ने कहा अगर मैं इसे कत्ल करवा दूं फमन यक़्तुलूनी, तो मुझे शहीद कौन करेगा, शहीद कौन करेगा? जरा देखिए तो सही, ये सब तकदीर की बातें हैं, तकदीर में लिखा हुआ था। अल्लाह समझ अता फरमाए। इसने जो है चाकू को तेज किया रात में, और चाकू को तेज करने के बाद इब्ने सबा यहूदी और खारजियों की साजिश थी, चाकू को तेज किया, सब मीटिंग करके रात में तेज किया। हजरत अली सुबह को फजर की नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे थे, फजर की नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे थे हजरत अली। तो होता क्या है, इनकी आदत ये थी कि ऐसे चुपके से नहीं जाते थे, ये जगाते भी सबको जाते थे, हे उठो चलो नमाज का टाइम हो गया, उठो चलो नमाज का टाइम हो गया। ये रास्ते में छुपा हुआ था। जरा देखिए हजरत अली मस्जिद पहुंच रहे हैं, ये बाहर निकला और निकल करके तलवार का चाकू का एक बार कनपटी पे पड़ता है, जो तलवार या चाकू धस गई और जाकर के घुटनी तक पहुंच गई, खून के फव्वारे निकले। अली वहीं गिर जाया करते हैं और अली ने कहा फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। ये कहते रहे, हजरत अली को उठा के लेके आया गया, 2-3 दिन तक बाकायदे हयात रहे। उसके बाद रूह अफसीन उफरी से परवाज कर जाती है। 4 साल 8 महीना 9 दिन तक इन्होंने उम्र खिलाफत अंजाम दिया। उसके बाद ये दुनिया से तशरीफ ले गए। इमाम हसन ने इनकी नमाज जनाजा पढ़ाई, इमाम हसन ने इनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और इनको कहाँ दफन किया गया इसके बारे में उलमा इख्तिलाफ कर रहे हैं। कहते हैं कि इनके कब्र को छुपाया गया था ताकि इनके जो दुश्मन है खारजी वो बेहुरमती न करें, खोदे और निकालें, इसलिए छुपा दिया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि रात में लेकर के मदीना मुनव्वरा लेकर के जा रहे थे लाश को, एक ऊंट पर सवार करके लेके जा रहे थे। रास्ते में ऊंट कहीं भाग गया पता ही नहीं चला। तो कुछ लोग कहते हैं अली आसमानों में है, कुछ लोग कहते हैं ढूंढने के बाद सरजमीन तय में वो पाया गया, उसके बाद वहीं रखा गया। इस तरीके से इख्तिलाफ है हजरत अली के मज़ार के बारे में। आज जो मशहूर है वो नजफ के बारे में मशहूर है। इस तरीके से बहरहाल अल्लाह ताला हमें हजरत अली की मोहब्बत में जिलाए, हजरत अली की मोहब्बत में उठाए। और देखो जरा, जब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो जाती है तो हजरत तलहा और हजरत जुबैर को छोड़ करके बाकी सब लोगों ने हजरत अली के हाथ पर बैअत कर लिया था। जंगे सिफ़ीन और जंगे जुमल वगैरह हुई है, मगर इससे हमारे उलमा ने मना किया है कि ये बातें जो है तकरीर करने की नहीं है, ये मुशाजरात सहाबा है, ये बात बताने से कोई फायदा नहीं है। कुछ जंग हुई है आपस में, क्योंकि कातिलीने उस्मान का मुतालबा किया गया क़िसास का, जिन लोगों ने उस्मान को मारा था, शहीद किया था, बदला लेने का मुतालबा किया गया। उसी बात में बात उलझी और जंगे जुमल हुई और जंगे सिफ़ीन हुई। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगे सिफ़ीन में मशगूल थे, उस मौके पे क्या हो रहा है, इनके हजरत अली के जो चाहने वाले थे उन लोगों ने कहा ए अली प्यास बहुत तेज़ लगी है, बहुत तेज़ प्यास लगी है, अगर कुछ पानी मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता।
पानी मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। हजरत अली ने कहा पानी तो यहाँ नहीं है, कहा जान निकल जाएगी अगर पानी नहीं मिला। तो कहा चलो पानी ढूंढा जाए। तो पानी ढूंढने के लिए एक तरफ गए। इनके हजरत अली के चाहने वालों ने कहा इजाजत दे दो, 2-4 किलोमीटर की दूरी पर अगर पानी मिल जाएगा तो हम जा करके हो सकता है दम निकलने तक वहां पहुंच जाए और पानी लेकर के आ जाए। अली ने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है। अपने घोड़े के लगाम को एक तरफ मोड़ा और मोड़ने के बाद कहा इधर ही चलो। थोड़ी दूर गए थे, हजरत अली घोड़े से उतर गए। उसके बाद कहा कि यहाँ जमीन को खोदो। जमीन को जब वहां खोदने लगे, थोड़ी देर के बाद एक पत्थर नमूदार हुआ बड़ा सा। अली ने कहा इसे खोदा जाए। अली ने कहा इसको हटाओ। सब लोग मिल करके पत्थर को हटा रहे हैं मगर हटा नहीं पा रहे हैं। अब अली आगे गए, आस्तीन को समेटा, उंगलियां उसके अंदर डाली और एक बार झटका दिया तो पत्थर उधर चला गया खसक करके। आप जरा देखिए, और पत्थर जब हटा तो पानी के चश्मा नमूदार हुआ, बड़ा अच्छा पानी। हजरत अली ने पिया, अपने बर्तन से भर लिए। इतना मीठा पानी, बता रहे हैं कि सफर में कहीं इतना मीठा पानी नहीं मिला था। बर्तन भर लिए और पानी पी लिए। अली ने कहा ये पत्थर उठवा करके यहाँ रख दिया जाए। वो पत्थर वहीं रख दिया गया। जमीन को फिर वैसे ही पाट दिया गया। बगल में गिरजा घर था, राही निकल करके आया और वो पूछ रहा है आप अल्लाह के नबी हैं क्या? अली ने कहा नहीं। आप कोई फरिश्ता है क्या? अली ने कहा नहीं। फिर आप कौन है? कहा मैं न नबी हूँ न फरिश्ता हूँ, मैं अली हूँ, दामादे मुस्तफ़ा हूँ। उसने कहा अपना हाथ बढ़ाइए और मुझे अपने हाथ पर कलमा पढ़ा लीजिए। हजरत अली ने कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत अली ने कलमा पढ़ा करके उसे मुसलमान बना लिया और जब मुसलमान बनाया तब सवाल किया ये तो बता इतने दिन से तू अपने धर्म पे कायम था, अब तक तू जो है अपने धर्म को मानने वाला था, अचानक क्या देखा? तूने कहा कलमा पढ़ा लिया जाए। तब उसने कहा हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि यहाँ का जो पत्थर है या तो नबी हटा सकता है या तो कोई फरिश्ता हटाएगा या तो दामादे नबी अली हटाएंगे। आज हमने जब हटाते हुए देखा तो हमने सवाल कर लिया, जवाब मिल गए हो तो हमने कहा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। अली रोने लगे, ए मेरे मौला तेरा लाख लाख करम है कि मैं गैरों की किताबों में भी याद रखा जाता हूँ। सुभान अल्लाह, गैर लोग भी हमें याद रखते हैं। जरा देखिए तो सही, ये अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। एक तारीख और ले लीजिए, मारिजुन नबुवा में लिखा हुआ है जब मक्का को फतह किया गया, 2 मिनट, जब मक्का को फतह किया गया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में गए तो 360 बुत रखे हुए थे ना, 360 बुत। हाँ, मारिजुन नबुवा में लिखा हुआ है नबी गए तो नबी ने सारे बुतों को अपने हाथों से तोड़ दिया। कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक आया और बातिल मिट गया, बातिल को मिटना ही था। मेरे नबी तोड़ते हुए जा रहे हैं, एक जो बड़ा सा लंबा सा बुत बचा, मेरे नबी ने अली को बुलाया, ए अली आओ और मेरे कंधे पे खड़े हो जाओ और खड़े होकर के इसे तोड़ दो। अल्लाह के रसूल जब सब आपने तोड़ दिया है तो इस एक को भी आप ही तोड़ दीजिए, इसको तोड़ने के लिए हमें क्यों बुला रहे? ए अली मेरा हाथ नहीं पहुंचता, ये बहुत लंबा है। अली मुस्कुराए, या रसूल अल्लाह आपकी भी समझ में नहीं आती, कल मक्के से उंगली उठाया था तो चांद टूट गया था आसमान पे, जरा जोर से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जमीन से उंगली उठा तो आसमान पे चांद टूट जाए, आज आप कह रहे हो कि हाथ नहीं पहुंच रहा है। कहा ए अली आओ, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, कंधे पे सवार हो जाओ। अदब के ऊपर हुक्म होता है, अली को हुक्म दिया नबी ने। अब अली क्या करे, कुल्हाड़ी लिया और नबी के कंधे पे जल्दी से चढ़ गए। मेरे नबी ने उठाया, अली ने खींच करके एक मारा, वो 2 टुकड़े होकर के जमीन पे गिर गया, 2 टुकड़े होकर के जमीन पे गिर गया। अली बोले अब तो टूट गया है, अब अगर काम के बाद 1 सेकंड भी यहाँ रहा तो बेअदबी ना हो जाए। जितने के लिए चढ़ाया था वो उतना ही देर रहना चाहिए। हजरत अली ने जल्दी
जल्दी से छलांग लगा दिया, कहीं बेअदबी ना हो जाए, जरा देखिए तो सही। और जब नीचे आए तो अली मुस्कुरा रहे थे। नबी ने पूछा क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो अली ने कहा या रसूल अल्लाह, जब आपने कंधे पे उठाया था तो मैं बताऊं कहां तक पहुंच गया था? कहां तक पहुंच गया था? अली ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह की इज्जत की कसम, आपके कंधे पे खड़े होकर के अगर आप इजाजत दे देते तो मैं अर्श को पकड़ के खींच लेता, जमीन पे